کے لیے خدا کے کلام میں سے غور کریں گے. آلدو دیکھا جائے تو یہ وہ ٹاپک ہے جو بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہے یا اوور لکڈ ہے. جنرلی اس پر اتنی منادی نہیں کی جاتی. موسٹلی فوکس جو ہے وہ روزوں کے بعد یا روزوں سے پہلے یسوع مسیح کی پیدائش ہے, کرسمس ہے. کرسمس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ لینٹ آ جاتا ہے, روزے آ جاتے ہیں. روزوں کے بعد ایسٹر اور دین آلموسٹ پھر پینتیکوسٹ جو کہ نیکسٹ سنڈے ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس پر زیادہ فوکس ہوتا ہے. بیچ میں یہ جو کلائمکس ہے خداوند یسوع مسیح کی جو کمپلیشن ہے زمینی خدمت کا, اس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. اور آج کلیسیا جو ہے اس کا اس یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کی جو زمین پر منسٹری ہے اس میں کلیسیا کا کیا تعلق ہے. لیکن جیسا ہم نے افسیوں کے خط میں پڑھا ہے کہ جب 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے, اسی واسطے وہ فرماتا ہے جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. آگے بریکٹ میں ہے, بریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ that is added later, that was not in an original Greek text. ٹھیک ہے, اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں کیا تھا جی, اترا بھی تھا. That is called descended. اور جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ وہ کہاں اترا جی, عالم ارواح میں اترا. ٹھیک ہے, عالم ارواح میں اترنے سے پہلے آئیے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں and then I'll come to the main topic. At the midpoint on the journey of life, I found myself in a dark forest, for the clear path was lost. This was a video clip from Dante's Comedy. Dante's Comedy was a literary poetry, ایک poem تھی جو 14ویں صدی میں اٹالین poets تھے اور ان کا نام تھا جی Alighieri's first, ان کا نام تھا جی Alighieri Dante. عام لوگ اسے دانتے کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے ایک پوئٹری لکھی اور اس کا نام کیا تھا, دا ڈیوائن کامیڈی. کیا ٹائٹل تھا؟ ڈیوائن کامیڈی کا مطلب کیا بنا اردو میں؟ الہی مذاق. ٹھیک ہے, ڈیوائن کامیڈی 14ویں صدی میں اندازہ کریں کب لکھی گئی, آج سے کتنے 100 سال پہلے؟ 800 سال, 800 years ago. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو کلپ آپ نے دیکھا ہے اٹس نون ایز ڈانٹیس انفرنو. انفرنو اٹالین لینگویج میں کہتے ہیں ہیل, دوزخ, انفرنو. اس کے اندر وہ کیا بیان کرتا ہے جی, اس میں وہ دکھاتے ہیں جی اٹس Inferno is the literary masterpiece. Inferno is the first part of an Italian writer. It is followed by Purgatorio and then Paradiso. So سب سے پہلا لیول کیا ہے؟ Inferno ہے, hell. Hell کے بعد کیا ہے؟ Purgatory. Purgatory مطلب جہاں پر روحوں کی صفائی ہوتی ہے. That's یہ یاد رکھیے گا, یہ ڈیوائن نہیں ہے. That is mythology, myth. ایک رائٹر نے جس طرح مہا بھارتا
किसने लिखी है पता ना आपको इंडिया में? नाम याद है? तुलसीदास। ठीक है, तो दैट वाज अ ह्यूमन इमेजिनेशन। तो दांते जो है इट वाज ही वाज अ पोएट, लेकिन उसने जो ग्रीक मैथोलॉजी और क्रिश्चियन थियोलॉजी थी उसने उन दोनों को पैरेलल रखा और फिर उसने क्या लिखी? ये पोएट्री लिखी। ये जो क्लिप है ये 2020 में पूरी सीरीज बनी है दांतेस की डिवाइन कॉमेडी के ऊपर। ठीक है जी, उसमें वो क्या बताता है जी? 3 हिस्से बताता है जी, 3 पैराग्राफ है, 3 लेयर्स हैं उस पोएट्री की। नंबर 1 क्या मैंने बताया है? हेल। हेल के बाद क्या है? परगेटरी। और परगेटरी के बाद क्या है? पैराडाइज, यानी जन्नत या बाग। इन्फर्नो डिस्क्राइब क्या बयान करते हैं जी? आपने शुरू में देखा होगा एक शख्स जो है वो कहता है जी मैं अपनी जिंदगी के ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां पर मैं बिल्कुल जंगल में था। ठीक है, दैट वाज ह्यूमन सोल। एक इंसान है और वो क्या करता है कि वो उसका ये सफर है जिसमें वो जो कदीम रोमन पोइट था वर्जिल उसका नाम था जी। इसमें जो नरेटर उसकी हेल्प करता है, उसको गाइड करता है, दैट इज वर्जिल जो कि ह्यूमन पोइट था। और इस पोएम के अंदर हेल जो बरज़ख है, जो दोज़ख है, उसको 9 सर्कल में दिखाया गया है। कितने सर्कल में? आपने देखा ना, एक सर्कल के बाद दूसरे सर्कल में, दूसरे के बाद तीसरे सर्कल में। इस तरह वो हेल के 9 सर्कल पूरे करने के बाद फिर कहां पहुंचता है? परगेटरी में पहुंचता है जी। Hell is depicted as a 9 concrete circles of torment. Torment मतलब जहां अजाब है, जहां लोग मुसीबत में हैं। Within the earth, और उसने क्या शो किया? ये कहां पर है? नीचे कहीं जमीन पर है। It is the realm, ये ऐसी जगह है of those who have rejected spiritual values, जिन्होंने खुदा के खौफ को, खुदा की इज्जत को, खुदा के कामों पर, खुदा के काम पर चलने से क्या कर दिया है? इनकार कर दिया है। By yielding a bestial appetite or violence, or by perverting their human intellect to fraud or malice against their fellow man, यानी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई चजदा काम नहीं जिना किया, ऐसे लोग कहां पर हैं? उस जगह पर हैं। अब वो जो 9 सर्कल हैं अजाब के, हेल के, इवेंचुअली अराइविंग एट द सेंटर, जहां पर उसका सामना बराह रास्त शैतान से होता है। बराह रास्त किससे मुलाकात करता है? वो उससे मुकाबला करता है जी। आफ्टर एस्केपिंग हेल, अल्टीमेटली वो हेल में से क्या आता है? बाहर आ जाता है। सो दांते और वर्जिल ये दोनों जो हैं वो दोनों फिर कहां पहुंचते हैं? परगेटरी में। और दांते फिर वहां से आसमान पर क्या है? चला जाता है। दैट्स द होल स्टोरी। इसकी वीडियो गेम भी बनी है, इस पे मूवी भी बनी है। सो आई वुड रेकमेंड, इफ यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, इसके ऊपर प्रॉपर कोर्सेज हैं जो सेमिनरियों में और इदारों में, यूनिवर्सिटीज लेवल पढ़ाए जाते हैं। सो अगर आपको मौका मिले तो इट्स वर्थ टू वॉच कि आज से 800 साल पहले हाउ क्रिश्चियन थियोलॉजी और ग्रीक मैथोलॉजी दे इमर्ज ईच अदर, और दांते ने उसको कैसे डिपिक्ट किया है पोएट्री के अंदर, एंड हाउ इट मेक अ मूवी नाउ। मैसेज क्या है इस क्लिप का, इस मूवी का? द मेन थीम इन दांतेस इन्फर्नो आर मोरालिटी। इंसान के अंदर की जो वैल्यूज हैं, मोरालिटी एंड डिवाइन जस्टिस, खुदा का इंसाफ, और फिर इंसानी रूह जो है उसका सफर है, उसका जर्नी है कि वो कैसे कैसे हालात में से गुजरती है, कैसे कैसे मुसीबतों में से गुजरती है, कैसे कैसे साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली उसको जो है हालात का सामना करना पड़ता है। और इस मामले में हम देखते हैं जी, ये तो मैंने आपको बताई है बात 800 साल पुरानी। ठीक है, रिसेंटली आई वॉज रीडिंग अनदर रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में क्या आता है? जॉन टेम्पल्टन एक इदारा है जो कि पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पर अमेरिका और कनाडा के अंदर, वो फिलोसफर्स को, थियोलॉजियंस को और सोशल साइंटिस्ट को वो ग्रांट देते हैं कि जी आप जो प्रेसिंग इश्यूज हमारे माशरे में चल रहे हैं उन पर क्या करें? रिसर्च करें और उसको सामने लेकर आएं, ताकि आप गवर्नमेंट की और लोगों की मदद कर सकें कि वो अपने आप को इन हालात में कैसे गुजार सकते हैं। रिसेंटली जॉन टेम्पल्टन जो इदारा है, उन्होंने 5.1 मिलियन ग्रांट दी है रेडलैंड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को, और उसने रिसर्च क्या करनी है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इंटरेस्टिंगली प्रोजेक्ट का नाम है जी morality and immoral issues in our society. The project explore 3 चीज: scientific, philosophical and theological question about immortality. Immortality, सदा जवान रहना जी, जिंदा, कभी मरने ना, immortal हो जाए।
इस पर ऑलरेडी 3 किताबें आ चुकी हैं। पहली किताब कैन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हेल्प अस लीड बेटर लाइव्स। कि जो बंदा मरने वाला है, क्या उसकी मौत के नजदीक पहुंचने के बाद जो तजर्बा है, क्या वो हमारी मदद कर सकता है कि हम अच्छी जिंदगी कैसे गुजारें? दैट्स नंबर 1 बुक। ये बुक का टाइटल बताया मैंने आपको। सेकंड बुक प्री लाइफ, आफ्टर लाइफ एंड द ड्राइव फॉर इमॉर्टैलिटी। पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद, और फिर हमारी जो ख्वाहिश है कि हम सदा क्या रहें, जिंदा रहें। तीसरी किताब डेथ एम्ब्रेसिंग द लास्ट ट्रांजिशन, मौत और आखिरी अपने दौर को क्या करना, उसको गले लगाना, उससे मिलना। तो अंदाजा करें कि जो इमॉर्टैलिटी है, लाइफ आफ्टर डेथ जो है, हमेशा जिंदगी पाने का और अपने आप को अमर करने का, अमृत जल जो है उसको लेने का जो कॉन्सेप्ट है, वो जब से इंसान ने इस जमीन पर, सिविलाइजेशन ने तरबियत पाई है, आगे बढ़ी है, तब से इंसान की यह ख्वाहिश रही है कि वो क्या रहे, इन कंट्रोल रहे, इवन मौत को भी क्या करे, कंट्रोल करे। ये तो मैंने आपको बात बताई है 800 साल पुराने यूरोपियन पोइट की, और फिर आज के दौर की रेडलैंड यूनिवर्सिटी की रिसर्च प्रोफेसर की। बाइबल इस सब्जेक्ट के बारे में हमें क्या बताती है? खुदा का कलाम जो आज से 2000 साल पहले लिखा गया है, वो मुझे और आपको कैसे गाइड करता है कि लाइफ, डेथ और आफ्टर लाइफ क्या है, हमेशा की जिंदगी, इमॉर्टैलिटी, या जो अबंडेंट लाइफ है वो क्या है, और इसका ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के साथ है। कैसे? हमारा जो रसूलों का कीदा है, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था, उसमें हम क्या फ्रेज पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहां उतरे जी? आलम-ए-अरवाह में। तो आलम-ए-अरवाह में उतरने का जो कॉन्सेप्ट है, ये नए अहदनामे का नहीं है, ये पुराने अहदनामे का है। खुदा ने नबियों के वसीले पहले से इसकी तरफ क्या किया था? इशारा किया था। लेकिन जो मेजर हर्डल थी वो ये थी कि न्यू टेस्टामेंट में, ओल्ड टेस्टामेंट में दैट वाज ओनली वन वे ट्रैफिक। बंदा जा तो सकता है, वहां से वापस आ नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि वहां से वापस आना जो है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। So that was questions already raised, descended into Hades. So 2 हवाला जाते हैं जी, जो न्यू टेस्टामेंट के अंदर इस चीज को डील करते हैं। पहले मैं आपकी तवज्जो न्यू टेस्टामेंट के जो 2 हवाला जाते हैं, पहले मैं उनकी तरफ दिलाता हूं, फिर हम चलेंगे, देखेंगे कि पुराने अहदनामे में जो प्रोफेटिक लिटरेचर है, उसके अंदर नबियों ने कहां और इसको किस अंदाज से बयान किया है, ठीक है? तो पहले चलते हैं जी पीटर के पास, मुकद्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह के हेडस में उतरने को, या दोजख में जाने को, आलम-ए-अरवाह में जाने के बयान को वो कैसे पेश करते हैं, उसको कैसे वो, ये याद रखिएगा, रसूल कौन थे? बाय फेथ ज्यूइश, ठीक है? पहली सेंचुरी में न्यू टेस्टामेंट लिखा हुआ, उनके हाथ में न्यू टेस्टामेंट नहीं था जैसे मेरे और आपके हाथ में है। सो रसूलों की जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी, रसूलों की जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, वो क्या था? हिब्रू स्क्रिप्चर, इब्रानी बाइबल, ठीक है? इब्रानी बाइबल थी, रब्बानिक लिटरेचर था, वादी कुमरान के मैन्युस्क्रिप्ट थे और ओरल ट्रेडिशन थे, जो 2nd सेंचुरी या जो 1st सेंचुरी जुडाइज्म है, जो कि हैकल दोबारा बनी अजरा और नेहमिया के दौर के बाद, और जो रिलीजियस एलीट और जो टीचिंग और जो तालीम खड़ी हुई, उसकी बुनियाद पर खड़ी हुई थी। इसीलिए बहुत सारे वाकयात और हालात आपको न्यू टेस्टामेंट में ऐसे मिलते हैं जिनका हमें बाज़ औक़ात आज समझ नहीं आती कि ये बात तो बाइबल में और कहीं नहीं है, ये कहां से ले आए हैं, ठीक है? तो इसलिए क्या रखिएगा, सोर्स सिर्फ हिब्रू स्क्रिप्चर नहीं था। क्या क्या सोर्स थे रसूलों के? रब्बानिक लिटरेचर, जुबानी रवायात, जिसको खुदावंद यीशु मसीह की अक्सर गुफ्तगू होती थी फकीयों फरीसियों के साथ कि तुमने खुदा के कलाम को बाप दादा की रवायत से क्या कर दिया? बातल कर दिया, ठीक है? सो दैट वाज ओरल ट्रेडिशन एज वेल। सो मुकद्दस पतरस इस सब्जेक्ट को कैसे डील करते हैं, जरा देखते हैं। मुकद्दस पतरस, उसका पहला खत, 3रा बाब और उसकी 20 आयत में आपके सामने पढ़ने लगा हूं जी। 1 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 20। ओके जी,
दूसरा पत्र खुल गया, ओके। हाँ जी, लिखा जी 20 वर्ष से पढ़ने लगा हूं, बल्कि थोड़ा सा मैं पीछे से आने लगा हूं जी। 18वीं आयत से पढ़ने लगा मैं। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18। क्या लिखा जी? इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से क्या है? जिंदा किया गया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह की रूह या सोल दैट वाज नॉट करप्टेड जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। तो जिस्म जो था वो तो कमजोरी की हालत में था, वो तो मारा गया, लेकिन जो सोल थी, जो स्पिरिट थी खुदावन यीशु मसीह की, दैट वाज ऑलवेज अलाइव, दैट कैन नॉट बी डाई। सो वही जो स्पिरिट है, इसी में, उसी रूह के अंदर उसने जाकर उन कैदी रूहों में क्या की? प्रोक्लेम किया। प्रीच, इवेंजलाइज नहीं किया, याद रखिएगा। क्या किया है? प्रोक्लेमेशन दिया है। प्रोक्लेम होता है जो काम आप ऑलरेडी क्या कर चुके होते हो, आप अनाउंस करते हो। तो अनाउंस क्या किया यीशु मसीह ने जाकर? यीशु मसीह ने जाकर मौत पर, कब्र पर अपनी फतह का क्या किया? अनाउंसमेंट कर दी। ठीक है जी, कि गुनाह, मौत, शैतान, कब्र, वो क्या हो चुकी है? वो फतेह हो चुकी है। ठीक है जी, मुनादी की। और जो उस अगले जमाने में रूहें, ये कौन सी रूहें थे जी? नूह के इलाके की बात की गई है कि नूह के दौर से लेकर उस पानी का मुशाबा बपतिस्मा भी, यानी इसमें बात की गई है कि उन रूहों के साथ वो एंगेज हुए नूह के जमाने से लेकर यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने तक। ठीक है जी, दैट वाज द एरा। तो पहली चीज हमें किसने बताई है जी? मुकद्दस पतरस ने क्या बताया है? यीशु मसीह ने क्या किया जाकर वहां? प्रोक्लेम किया, अनाउंस किया। ठीक है। नंबर 2 हवाला जो है वो रेफरेंस आपको मिलता है, लूका का बड़ा मशहूर वाक्य है, अक्सर जनाजों पर आपने मुनादी सुनी होगी, अमीर आदमी और लाजर की मिसाल। ठीक है। सो अमीर आदमी मरने के बाद क्या लिखा है जी? दोनों हैं एक इलाके में, लेकिन लगता यह है कि दोनों के अपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट क्या हैं? अलग-अलग हैं। ठीक है। एक दूसरे को देख भी सकते हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस करके मुलाकात नहीं कर सकते। इसलिए अमीर आदमी ने लिखा है कि अजाब के दरमियान आंखें उठाकर लाजर को बाप अब्राहम की गोद में देखा, और फिर रिक्वेस्ट उसने क्या की कि मैं आग में तड़पता हूं, लाजर को भेज उंगली का सिरा। ठीक है ना। आपने देखा तो क्या जवाब मिला बाप अब्राहम से? कि भाई तू जो कुछ लेना चाहता था तुझे क्या मिल गया है? तूने ले लिया है। अब इस जगह पर देयर इज नो सेकंड चांस। चांस जो था वो कहां पर था? जमीन पर था। यहां पर दूसरा वो कहता है कि जी हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या है? ठीक है। इट्स अ ह्यूज गैप है जिसे कोई यहां से पूरा नहीं कर सकता। तो आप देख रहे हैं कि जो बरज़ख आलम अरवाह का जो दौर है, जो सीन है, वो में नजर आ रहा है, और यीशु मसीह ने उसी में जाकर जो कैदी रूहें थी उनके दरमियान जाकर क्या किया? प्रोक्लेम किया। ठीक है जी। अच्छा, ये हमें 2 हवालाजात मिलते हैं नए अहदनामे में। ठीक है जी। पुराने अहदनामे में चलते हैं, वहां पर जो हेल में उतरने का और फिर मुर्दों की जिंदगी और डेथ के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, और खास तौर पर खुदावन यीशु मसीह के आसमान पर जाने की जो प्रोफेसी है, उसका जिक्र आप देखेंगे 3 मज़ामीर के अंदर मिलता है। और ये तीनों मज़ामीर जो हैं, इनका फ्लो आप देखेंगे कितना कितना नेचुरल फ्लो है इस सब्जेक्ट को लेकर। ज़बूर 16, ज़बूर नंबर 16 अगर हम पढ़ें, और अक्सर हम जनाजों पे ज़बूर को गाते हैं, किसी को याद है क्या जी? ट्यून याद है? ऐ खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली। ठीक है जी। तो आप देखेंगे इसकी जो 9वीं आयत है ज़बूर 16 की, वहां क्या लिखा है? कहते जी, बल्कि 8वीं आयत से पढ़ देता हूं। लिखा है, मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दाहिने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। क्यों? आगे वजह है, मेरा जिस्म भी अमनो अमान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में
रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तो आप देख रहे हैं प्रोफेसी, दाऊद के साथ तो ये प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, हालांकि ज़बूर किसने लिखा है? दाऊद का है। तो दाऊद तो सबको पता है, मर गया, दफन हुआ, सड़ गया, और कब्र भी होगी, हड्डियां पईयां होंगियां, ठीक है। लेकिन दैट वाज अ प्रोफेसी, खुदा का रूह दाऊद के वसीले से किसकी जानिब इशारा कर रहा है? यीशु मसीह की जानिब, ठीक है। यीशु मसीह की जानिब ये प्रोफेसी ज़बूर 16 में आपको ग्लिम्प्स मिलता है कि तू ना तो मेरी जान को कहां रहने देगा? पताल में, और ना तू अपने मुकद्दस को सड़ने की नौबत देगा। ज़बूर 16, ओके जी। इसके बाद आप देखेंगे कि हम जब ज़बूर में आगे बढ़ते हैं, ज़बूर नंबर 24 आपको एक और रेफरेंस मिलता है। हम लोग चूंकि पंजाबी जो कलीसिया है, हम लोग गाते हैं ज़बूर 24 की आखिरी 3 लाइन, पहली 4 लाइनें। हम लोग बाकी की 3 लाइनें नहीं गाते हैं, इसलिए हमें जो यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की प्रोफेसी ज़बूर 24 के अंदर है, वो बाज़ औक़ात हमें लगता है कि है ही नहीं। तो क्या है, जरा देखिएगा ज़बूर 24। तो यहां पर पहले यह बताया गया जी कि खुदावंद के मुकद्दस पहाड़ पर कौन रहेगा, ठीक है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या होंगे, और क्या लिखा है? खुदावंद के पहाड़ पर, तीसरी आयत पढ़ रहा हूं जी ज़बूर 24 की। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? सवाल आया ना। तो खुदावंद का पहाड़ कौन सा है? आपने देखा ज़बूर 68 की जो रिस्पॉन्सिव रीडिंग की गई थी, उसमें 3-4 पहाड़ों के नाम हैं। ए बसन, और बसन सबसे ऊंचा पहाड़ था, ठीक है। कोहे नबू, ये पहाड़ों की गुफ्तगू हो रही है। रीजन इसकी क्या है? रब्बानिकल ट्रेडिशन है जी, इट्स नॉट रिटन बट इट्स अ रब्बानिकल ट्रेडिशन। रब्बानिकल ट्रेडिशन ये है कि जब खुदा ने जमीन पर शरीयत देने के लिए कोहे सीना का चुनाव किया, और खुदा ने आसमान से फैसला सुनाया कि जी मैं बियाबान में किसी एक पहाड़ को चुनूंगा जहां पर मैं जाकर अपना क्या करूंगा, मेरी हजूरी, मेरा तख्त वहां लगेगा, और मैं मूसा को उस पर बुलाऊंगा, और सारे पहाड़ खुशी ना की हो गए, छाड़ा मारना शुरू हो गए। ओहो हो, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਰਮ ਖਾਂ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਹਾੜ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਉਚਾਈ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲਕਾਓ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरा पहाड़ कहने लगा नहीं, तेनों कितने आ, जरा मेरी चौड़ाई वेख, जरा खुदा दी पूरी आर्मी उतरनी है, खुदा दा पूरा लश्कर उतरना वे, तो मेरे ना वड्डी जगह इतने किरे कोले, तू ऊंचा होएगा अपनी जगह पर मेरी चौड़ाई वे, ठीक है। पहाड़ों की गुफ्तगू सुने, हमने पढ़ी है। अब मैं आपको फर्क पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। अब इस पर्सपेक्टिव से उस ज़बूर को दोबारा पढ़ें कि पहाड़, माउंटेन्स आर बोस्टिंग कि जी खुदा जब लॉ देने के लिए, शरीयत देने के लिए उतरेगा, तो सार ना वड्डा ते सार नाल उच्चा ते सार नाल सोहना बंदा की करेगा? खुदा चुनेगा। लेट्स सी 68। डॉक्टर साहब ने पढ़ा था हमारे लिए, फिर दोबारा पढ़ते हैं। 15वीं आयत से हमने पढ़ा था ना जी, तो पहाड़ों की जरा गुफ्तगू सुने। कहते जी बसन का पहाड़ क्या है? ऊंचा, ये लंबा चौड़ा उच्चा पहाड़ है जी, ठीक है। ऐ ऊंचे पहाड़ों, जिन्हें ना तुरम खां तो जो व्डे जा रहे, जिन्हें अपने समझा कि बड़ी कुछ शै बन गए हैं, क्या बोला उसको? ऐ ऊंचे पहाड़ों, तुम उस पहाड़ को क्यों घूरियां पांदे हो? ताकत नहीं यहां लिखा है, पंजाबी च क्या आएगा? घूरियां पानियां ना, उन्हें वेंदे हो। आज वैसे मुझे बड़ी दिलचस्प बात पता चली कि हमारे चर्च की बहुत सारे लोग सर्विस, असी एवं खुश होंगे रहने कि लोग बड़ी वेंदे ने, साढ़े सर्विस बड़े लोग वेंदे ने हफ्ते बाद। वो पता लगता लोग इसलिए वेंदे ने कि ए वेखिए कि इन्हें किहड़े बंदे नूं फड़ के बाद चो फोन कॉल करके कहना तेरे नाल होया जी, उहदे च तेरे नाल इंज होया ही, तू वो चर्च की करन जाना है, तू वो चर्च की करन जानी है, तेनों तो चर्च च कोई वैल्यू ही कोई नहीं। वो जो नवे लोग आए ने तो पुराने हो गए ने, ठीक है, तो पुराने जिहड़े ने वो नवे आंदे ने जी कि सानू जनाब को पुछदा कोई नहीं है, पुराने आंदे ने जी साडी वैल्यू खत्म हो गई है। मतलब नवा पुराना की हो रहा है, चलन रहा है। तो ये क्या कह रहा जी, ऐ ऊंचे पहाड़ों, तुम उस पहाड़ को क्यों घूरते हो, क्यों ताकते हो, जिसे खुदा ने अपनी सुकूनत के लिए क्या किया है? पसंद किया है। सुहागन वही, पिया मन भाए, ठीक है ना।
ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਧਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਖਿਦਮतें नहीं मिलती। खिदमत कौन देता है? खिदमत खुदावन देता है, जिसको मर्जी खुदा चुन ले। ठीक है जी। सो क्या ऊंचे पहाड़ों को खुदावन ने शटअप कॉल दे दी? ठीक है ना? क्या ऊंचे पहाड़ों शट योर माउथ? क्योंकि ये जो पहाड़ है इसे क्या किया है? मैंने अपनी मर्जी से अपनी सकूनत गाह के लिए क्या किया है? पसंद किया है। ठीक है। और कहा जाता है जी कि जितने ऊंचे पहाड़ थे उस सेना के बियाबान के अंदर, उनमें से जो कोहे सेना का जो पहाड़ी सिलसिला था, याद रखिएगा पहाड़ का मतलब ये नहीं कि कल्ला पहाड़ के लिए कल्ला खड़ोता है, इट्स अ होल माउंटेन रेंज। जैसे आप देखें हमारे पैसाडीना ये कैलिफोर्निया में क्या है, पूरे माउंटेन क्या है, इट्स अ रेंज। कोई एक पहाड़ कल्ला नहीं होता तो कौन बन के पिरामिड्स की तरह, पिरामिड्स नहीं है, वी हैव माउंटेन रेंज। इसी तरीके के साथ जो सेना का जो पहाड़ी सिलसिला है, जैसे हमारे यहां कोहे हिमालय है, हिमालय एक पहाड़ नहीं है, वो क्या है, इट्स अ होल रेंज। सो इसलिए ये जो कोहे सीना का जो पहाड़ी सिलसिला था, उसकी जो ऊंचाई थी वो अपने इर्द गिर्द के सारे पहाड़ी रेंज से क्या थी, सबसे नीचे। इसलिए तो मूसा वर्गा बंदा 40 दिन की पहुंच जाता ही आराम नाल, जरा को वॉक की, जरा को थले उत्ते जरा को वॉक की हो गया थले, एडा उच्चा पहाड़ था, मूसा ने लग गए हन। ठीक है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो पहाड़ हैं, सो खुदावन के पहाड़ पर सवाल आया जी, कौन, ज़बूर 24 में सवाल आया, खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? और आगे क्रेडेंशियल क्या है? वही जिसके हाथ क्या हैं, जिसका दिल क्या है, पाक है, बतालत झूठ पर दिल नहीं लगाया, मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावन की तरफ से क्या पाएगा? बरकत पाएगा। अच्छा, बंदियां चाहते हैं क्रेडिबिलिटी किसी को नहीं चाहिए, इंसानों में से किसी के अंदर ये क्रेडेंशियल मौजूद नहीं है। इसलिए ज़बूर का दूसरा हिस्सा क्या कहता है? कहता है जी, ऐ फाट को अपने सर क्या करो, बुलंद कर दो। ऐ अबदी दरवाजों, सो यहां पर जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है वो किसी फिजिकल उसकी तरफ इशारा नहीं है। अबदी दरवाजों, इटर्नल डोर्स, क्या करो, ऊंचे हो जाओ, और जलाल का बादशाह क्या होगा, द किंग ऑफ ग्लोरी, द ओनली मैन, एक ही शख्स है जो खुदावंद के पहाड़ पर क्या कर सकता है, सुकूनत कर सकता है, सिर्फ एक ही है। ज़बूर नंबर 24, ही इज द किंग ऑफ ग्लोरी, खुदावंद जो कवि और कादिर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। ऐ फाटको अपने सर क्या कर दो, बुलंद करो, ऐ अबदी दरवाजो उनको बुलंद कर दो, जलाल का बादशाह। लोकी पूछते ने ये जलाल दा बादशाह कौन है? क्या जवाब आया है? लश्करों का खुदावंद वही जलाल का क्या है, बादशाह है। तो आप देख रहे हैं जी फ्लो क्या बन रहा है। 16 के बाद क्रेडेंशियल जो है 24 जो ज़बूर है, इसके पीछे अगर आप देखेंगे ये पूरी सीरीज है 3 ज़बूरों की। ज़बूर नंबर 22 आता है। ज़बूर नंबर 22 क्या है? क्रूसिफिक्शन का ज़बूर है। मेरे खुदा तूने मुझे, तू मेरी फरियाद और मेरे आहो नाला से क्यों दूर रहता है? ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूं, तू जवाब नहीं देता, रात को भी और खामोश। तो ज़बूर 22 आप देख रहे हैं ना, क्रूसिफिक्शन का साम है। ठीक है। क्रूसिफिक्शन के साम के बाद, राइट, मुर्दों में से जी उठने के बाद ज़बूर नंबर 23 में हम दाखिल होते हैं। और ज़बूर नंबर 23 क्या है? इट्स अ गॉड्स फेवर, बरकतें। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी आई शैल नॉट वांट। सो आप देख रहे हैं फ्लो 16, 22 क्रूसिफिक्शन, 23 प्रॉमिस ब्लेसिंग, और फिर 24 के बाद क्या है? ग्लोरिफिकेशन, ग्लोरी। सो यहां से हमें पता चलता है जी कि खुदावन यीशु मसीह जो हैं वो एक्चुअली आसमान पर जाने का जो ट्रांजिशनल टाइम है वो क्या है? वो पूरा हो गया है। कितने दिन रहे यीशु मसीह? 40 डेज। बाइबल मुकद्दस में 40 कहां कहां है जी? नो 40 दिन। एनीबॉडी एल्स? मूसा, उसके बाद हाँ जी 40 साल, 40 दिन की आजमाइश। ठीक है। एलिया 40 दिन 40 रात दौड़ता रहा। ठीक है, एक टाइम की रोटी खा के 40 साल।
So what does it say? Why 40 days? Transition. 40 years is a transitional period, जिसमें खुदा एक दौर को रैप अप करके नया दौर क्या करने वाला है, शुरू करने वाला है. ठीक है. सो इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ आप देखेंगे ना, ये सूफीज्म जो है हमारे, जो चिल्ले चिल्ले काटते हैं लोग, सारे मंत्र शंत्र कर देने, मोस्टली इनकी सबसे लंबी जो तपस्या या जो उनकी वो होती है कितने दिन की होती है? 40 days. ठीक है. तो 40 days is always a transition. 40 days is always जिसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ट्रांजिशन और आपकी जो कहना चाहिए कि तसलसल है, उसको वो क्या रखता है, उसको कायम रखता है. यीशु मसीह 40 दिन तक जमीन पर रहे हैं, अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर करते रहे, प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट बिगेस्ट, द क्लाइमैक्स ऑफ द होल साल्विफिक प्लान. ठीक है. क्योंकि अभी यीशु मसीह मुर्दों में से एक अकेले क्या हुए हैं, जी उठे हैं. अब उसने पूरी की पूरी जनरेशन क्या करनी है, तैयार करनी है, with the same power, with the same authority, with the same presence of the Holy Spirit. तो इसके लिए जरूरी है कि वो ट्रांजिशनल पीरियड गुजारा जाए, and that is where the ascended Christ came. ज़बूर 68 जो हमने पढ़ा था, ये कहा जाता है जी कि ये दाऊद बादशाह के जब उसने यरूशलेम में दाखिल हुआ है, उसके बैकग्राउंड में लिखा गया है. ज़बूर 18 में, ज़बूर 68-18 की जरा एक आयत सर देखेंगे, 68 की 18वीं आयत बस उसको, क्योंकि उसी आयत को पौलुस रसूल ने इफिसियों के खत में इस्तेमाल किया है, उसी कॉन्सेप्ट. तो देखेंगे कि ज़बूर 68-18 क्या है, और पौलुस रसूल ने उसी आयत को जब नए अहदनामे में बयान किया है तो पौलुस उसे कैसे बयान करते हैं. सो 68:18, साम 68. क्या लिखा जी? तूने आलम बाला को क्या फरमाया? पंजाबी च की है जी, हिंदी पंजाबी. ओके जी. उच्ची थां ते की हो गया? चढ़ गया, यानी आलम बाला पर, ऊपर को चला गया, और कैदियों को भी क्या कर गया? साथ ले गया. ठीक है जी. ओके. उसके बाद सेकंड पार्ट इस आयत का कह रहा है, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से क्या मिले? गिफ्ट्स. यानी ऐसी है कि जैसे कोई बादशाह जब किसी वॉर को जीतता है, वॉर को जीतने के बाद जो उस मुल्क का जितने रिसोर्सेज होते हैं वो किसके पास आ जाते हैं? जीतने वाले बादशाह के पास. ठीक है ना. और फिर जो बाकी इर्द गिर्द की छोटे छोटे ममलकतें होती हैं वो फिर क्या करती हैं? वो आंदियां ने कि जी असी अपने ट्रिब्यूट तेन दे रहे हैं क्योंकि वी एक्सेप्ट यू एज व्हाट? एज अ किंग. तू हम पर क्या करेगा? हुकूमत करेगा. ठीक है. तो सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर कि तू आलम बाला को क्या हो गया? सऊद फरमाया. तो आलम बाला का इसका मतलब यह हुआ कि देयर वर ऑलरेडी प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स, अथॉरिटीज वर वर्किंग इन द हेवनली realm. ठीक है ना. समझ ने कहा क्या होने लगा है कि जमीन पर का इख्तियार शैतान ने यीशु मसीह को क्या ऑफर की थी? मुझे झुककर सजदा कर, मैं क्या करूंगा? कहां का? जमीन का सिर्फ, क्योंकि उसकी डोमेन सिर्फ क्या थी? जमीन की. कंट्रोल कहां से करते थे? लेकिन पहले आसमान से. लेकिन डोमेन उसकी क्या थी? यीशु मसीह ने पहले तो दुश्मनों के इलाके च उतर के पहले तरोड़ की थी ना, दी दुश्मनों की. ठीक है. इसके लिए इफ्सियों के खत का एक हवाला मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन वो ये है कि उसने उनका तमाशा बना दिया, सर्कस लाया उन्होंने. किनका? हुकूमतों का, इख्तियार वालों का. उसने क्या किया? बरमला पब्लिक सर्कस लगा दिया उनका. ठीक है. पब्लिक सर्कस का मतलब ये होता था जी कि जब कोई मुल्क जीता था ना, आपको पता है ये 71 की जंग में इंडिया पाकिस्तान की जो हुई बांग्लादेश के मामले में 70,000 पाकिस्तानी फौजों ने क्या डाले थे? हथियार डाल दिए थे. ठीक है ना. तो किसी भी फौजी के लिए हथियार डालने का, क्योंकि वो साइन अप हथियार डालने के लिए नहीं करते, वो किसके लिए साइन अप करते हैं? मरने के लिए. फौजी का मतलब क्या है जी? कि आई एम साइनिंग अप फॉर व्हाट? टू डाई. डू एंड डाई, नेवर आस्क व्हाई. टोटल सबमिशन. इसीलिए चेन ऑफ कमांड क्या करती है? वो काम करती है. ठीक है. खुदा ने जब बनी इसराइल को सजा दी ना, मैं आपको इमेज बताने लगा हूं कि पब्लिक बेइज्जती किवें हुंदी है फौजियों की. उस तो मीडिया इतना नहीं था ना. पुरानी फिल्म आज भी कई बारी कोई लोग पहाड़ देने फौजियों ने हथियार सुटे, बेल्ट जब उतारते हैं और वो करते हैं. खुदा ने बनी इसराइल को पता क्या कहा? सजा दी, जब बाबल तुझ पर हमला करेगा. यशायाह नबी किताब में लिखा है. ठीक है. उन्होंने कहा जब ये तुम्हें बांध कर लेकर जाएंगे ना,
किन को सजा मिली है? इसराइल को। खुदा ने कहा जब ये आएंगे, जब तुम्हें बांध कर लेकर जाएंगे, तो तुम्हारे कपड़े उतार कर तुम्हें नंगा लेकर जाएंगे, और बांधा होगा तुम्हें जानवरों की तरह, लेकिन तुम्हारे कपड़े क्या हुए होंगे? यू विल बी स्ट्रिप आउट। इस गम में आप अंदाजा करें, यसाया नबी इस प्रेडिक्शन को कहने के लिए लिखा है। वो 3 साल तक यसाया, कैन यू बिलीव दैट? इट्स रिटन इन आइज़ायास प्रोफेसी। 3 साल तक यसाया जंगलों में नंगा फिरता रहा, एज अ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट लेसन टू हिज नेशन। इंटरेस्टिंग। तो अब अंदाजा करें, खुदावन यीशु मसीह ने जब इन हुकूमत वालों का, इख्तियार वालों का तमाशा बनाया, तो इसका मतलब क्या है? कि उनको टोटली उनकी पावर, अथॉरिटी, ग्लोरी, इन्फ्लुएंस, डोमेन, एवरीथिंग यीशु मसीह ने क्या कर दी है? स्ट्रिप डाउन कर दिया है। नथिंग एल्स। तो हाल में बाला पर जाने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि भाई चढ़ गया, बस होना सी वेंद रही, मागे मार दे रही, ये की हो गया। देयर इज अ पर्पस, देयर इज अ होल मिस्ट्री बिहाइंड दैट। देयर इज समथिंग हैपन इन हेवनली realm. सो कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी क्या मिले? हदिये मिले, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। ओके जी, अब इसी रेफरेंस को देखते हैं पौलुस रसूल ने इफिसियों के खत में कैसे ट्रीट किया है। ठीक है जी, सेम वर्स, सेम कॉन्सेप्ट, यीशु मसीह का अस्मान पर उठाए जाने के साथ लिखा जी। जब वो आल में बाला पर चढ़ा, 8वीं आयत, इफिसियों 4:8, कैदियों को क्या ले गया? साथ ले गया। 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं जिस बारे में जो मुख्तलिफ लोग बयान करते हैं। थियोलॉजियन स्कॉलर्स आर डिवाइडेड ऑन दिस इंटरप्रिटेशन। वो क्या है? पहले इंटरप्रिटेशन ये है कि जी कैदी वो हैं जो कैदी रूहें थी, जो नूह के वक्त से लेकर क्या थी? नीचे अजाब में थी। उनको यीशु मसीह क्या ले गया? अपने साथ। एक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि असल में कैदियों से मुराद यहां पर वो गिराए हुए फरिश्ते हैं जिनको बगावत की क्या मिली थी? सजा मिली थी। उनको यीशु मसीह ने क्या किया है? जैसे जनरल जंग जीतने के बाद मुखालफ फौज के कैदियों को बांध कर लेकर आता है ना, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। और आदमियों को क्या दिए? इनाम दिए। अच्छा, ज़बूर की किताब में लिखा है उसको आदमियों की तरफ से क्या मिले? हदिये मिले, गिफ्ट मिले। यहां पर क्या हो रहा है कि जो स्पॉइल इकट्ठी हुई है जंग जीतने के बाद, उसने क्या किया? वो बांट दिया अपने फौजियों को, अपनी आर्मी को, अपने लोगों को। उसने क्या कर दिए? वो बांट दिए हैं। आपको याद है ना, पाकिस्तान इंडिया में जेडी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में आती है, सारे ओहदे सारे किन्ना कोल, जो मुखालफ पार्टी होंगे सारे लोग छुप जाते हैं इधर उधर। ठीक है। फिर अपनी पार्टी आ गई, फिर आगे आ गए। ठीक है, सारे ओहदे सारे। तो ये सेम स्टोरी है। ठीक है। सो नूह के जमाने से लेकर यीशु मसीह के जमाने तक जमीन पर हुकूमत किसकी रही? इब्लीस की, मौत की, गुनाह की। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद सारी डोमेन, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो गया है? चेंज हो गया है। वर्शिप ऑर्डर चेंज हो गया है। वर्शिप के इमेजेस चेंज हो गए हैं। लैंग्वेज चेंज हो गई है। यीशु मसीह की प्रस्तिश का और हैकल की सारी चीजों का कॉन्सेप्ट सोचली क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्म हो गया है। एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म्ड। इसीलिए पौलुस रसूल क्या कहते हैं? उसी आयत को कहते हैं जी कि उसने आदमियों को क्या दिए? इनाम दिए। वर्शिप ऑर्डर क्यों चेंज हुआ? ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। आप देखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह के आसमान पर जाने का जो एक्शन है, जो फिजिकल जेस्चर है, वो क्या है? जरा पढ़ेंगे इसको, एक्ट जरा देखते हैं। लूका इस मामले को, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने को कैसे बयान करते हैं, क्योंकि रसूलों के माल और लूका का एक ही बंदा मुसन्नफ है। तो लेट्स सी। आखिरी 3 आयतें हैं जी। 50 आयत है लूका की इंजील 24वें बाब की। लिखा है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया, खुली जगह से, और अपने हाथ उठाकर उन्हें क्या दीजिए? 2 जेस्चर आप देख रहे हैं। पहला जेस्चर क्या है? हाथ उठाए हैं। दैट्स अ प्रीस्टली ऑर्डर। ये प्रीस्टली जेस्चर है। सो हैकल के अंदर जो कहानत का निजाम था, जो बरकत सरदार काहिन देता था, वो बरकत कहां ट्रांसफर हुई? एज अ सरदार काहिन होते हुए किसके पास आ गई? यीशु मसीह के पास, क्योंकि ही इज नाउ हाई प्रीस्ट वेयर? आसमानी हैकल में। तो नीचे की जो कॉपी थी, वो कॉपी नकली काम क्या हो गया? सारा खत्म। इट शिफ्टेड बैक टू वेयर फ्रॉम द ओरिजिनल। हाथ उठाकर क्या दी उन्हें? हाथ उठाए, फिर क्या दी?
So it means یسوع مسیح نے پراپر ورڈ اٹر کیے ہیں برکت کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور برکت ایرونک بلیسنگ موسٹلی ملتی تھی. خداوند تجھے کیا رکھے, محفوظ رکھے, خداوند تجھے برکت دے, خداوند اپنے چہرے کا نور تجھ پر کیا کرے. دیٹ واز دا ایرونک بلیسنگ, پریسٹلی بلیسنگ جو کہ پرانے عہد نامے میں دیتے تھے. اور یہ صرف کون دے سکتا تھا, جو ہارون کی نسل میں سے ہوتا تھا. چونکہ نئے عہد نامے کے چرچ نے یہ دیکھا کہ ہیکل کے اندر جو خدا کا جلال, گلوری جو تھی, شکائنہ, آپ نے دیکھا نا حزقیل نبی کے جو حوالہ پڑھا گیا تھا, کیا تھا کہ خداوند کا جلال ہیکل میں کیا آ گیا ہے, واپس آ گیا. پہلے کیا ہو گیا تھا, حزقیل نے دیکھا تھا کہ جلال کیا ہو گیا, وہاں سے چلا گیا ہے, اب دوبارہ کیا آ گیا ہے. تو یہ کس ہیکل میں آیا, دیٹ واز ناٹ فزیکل ہیکل. ہیکل اب کون ہے, کلیسیا, کلیسیا ہے اب ہیکل, ٹھیک ہے. So that's interesting. اسی لیے جو ایرونک بلیسنگ ہے, اب وہ یسوع مسیح ہائی پریسٹ ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں, وہ فارورڈ کر رہے ہیں کہ یہ اب یہ ہیکل ہے, کلیسیا, چرچ جو ہے, ٹھیک ہے. تو پریزنس خدا کی جو شکائنہ گلوری